નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6ના ટપકા કા ડરનો અભ્યાસ કરીશું. ટપકા એટલે કે પાણીના ટીપા. બરસાત કા દિન થા એટલે કે વરસાદનો દિવસ હતા. ચોમાસાની ઋતુ શરૂ હતી. ચારો ઓર પાણી બરસ રહા થા. ચોમાસાનું હતું એટલે સ્વાભાવિક છે, ચારે બાજુ વરસાદ વરસી રહ્યો હતો, પાણી વરસી રહ્યું હતું. બુઢિયા કા ઘર ભીગ રહા થા એટલે જંગલમાં બુઢિયાનું ઘરડી સ્ત્રી હતી અને તેનું ઘર પાણીમાં પલળી રહ્યું હતું. જલ્દી કા બુઢિયા કા ઘર ટપકને લગા એટલે કે ખૂબ ઝડપથી. ઘરડી સ્ત્રી હતી, તેનું ઘર છે, તેનું પાણી ટપકવા લાગ્યું, તેના પાણીના ટીપા ટપકવા લાગ્યા. બુઢિયા પરેશાન હો ઉઠી. પાણીના ટીપાથી બુઢી સ્ત્રી, જે ઘરડી સ્ત્રી છે, તે ખૂબ પરેશાન થઈ ગઈ. પરંતુ કરતી બી ક્યાં? પરંતુ કરે પણ શું? પરંતુ તે ઘડી હતી અને પોતે તે છાપરા અને નળિયાને બદલી ન શકે. છપ્પર કો છાએ કોણ એટલે કે છપ્પર એટલે કે છત છે, ઘાસ ફૂસનું જે છત છે એને ઠીક કોણ કરે બરાબર? થોડી દેર મેં ઓલે ભી પડને લગે એટલે કે થોડી દેરમાં પણ કરા પડવા લાગ્યા, એટલે મોટા મોટા બરફના કરા પડવા લાગ્યા. બેર બરાબર ઓલે એટલે કે જે કરાઓ હતા તે બોર જેવા મોટા મોટા હતા. ઉધર એક બાગ ઓલો કી માર સે પરેશાન હો ઉઠા. એક જંગલ હતું, ત્યાં વાઘ તો હોય જ ને. વાઘ પણ એટલે કે ઓલો કરાવો છે તેના મારથી પરેશાન થઈ ગયો હતો, કારણ કે કરાઓ આકાશમાંથી જમીનમાંથી પડે, ખૂબ વાગે, એટલે આ કરા સિંહને પણ વાગ્યા, એટલે ખૂબ પરેશાન થઈ ગયો. કૂદતે ફાનતે વહ બુઢિયા કે ઘર કે પાસ પહોંચા. કૂદકા અને ઠેકડા મારતો જે સિંહ છે એ બુઢિયા ઘરડી સ્ત્રીના પાસે પહોંચી જાય છે. બુઢિયા ચાવલ પકા રહી થી એટલે ઘરડી સ્ત્રી હતી તે તેના ઘરની અંદર, ચોપડીની અંદર ચાવલ બનાવી રહી છે. ચૂલ્હે પર પાણી ટપક રહ્યા હતા, ટપ ટપ. અને જ્યારે તે રસોઈ કરતી હોય છે, એને ચૂલો હોય છે, ત્યાં પાણી પડી રહ્યું હોય છે, પાણીના ટીપા પડ્યા રહ્યા હોય છે, ટપ ટપ. ચૂચલા ઉઠી ઓર બોલી. તે એટલે કે તે ઘરડી સ્ત્રી ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગઈ અને બોલવા લાગી. શું કહ્યું? મને વાઘથી ડર નથી લાગતો, પણ મને તો આ ટપકાથી વધારે ડર લાગે છે. બાઘને સોચા, બુઢિયા મુझसे તો નહીં ડરતી, મર ટપકા સે ડરતી હૈ. આજે ઘરડી સ્ત્રી જે શબ્દો બોલી એ વાઘ સાંભળી ગયો અને તે વિચારવા લાગ્યો. શું લખ્યું છે? બાઘને સોચા, વાઘ વિચારવા લાગ્યો કે આ ઘરડી સ્ત્રીને મારાથી તો ડર નથી લાગતો, પણ ટપકાથી ડર લાગે છે, એટલે કે ટીપાથી ડર લાગે છે. જરૂર ટપકા મુझसे भी बड़ा जानवर होगा. એટલે કે વાઘે વિચાર્યું, મારાથી કરતાં પણ મોટું જનાવર હશે, તો જ આ ઘરડી સ્ત્રી તો એનાથી ડરતી હોય અને મારાથી ના ડરતી હોય. બસ ઇतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पैर रख कर भाग गया. આટલું જ વિચારીને વાઘ ગભરાઈ ગયો અને સિર પર પેર એટલે કે ફટાફટ ભાગી ગયો. બાળ દોસ્તો, શબ્દાર્થનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પરેશાન, હેરાન. છપ્પર એટલે કે છત, ઘાસ ફૂસ પર લકડી સે બની છત. ઓલે ગુજરાતીમાં કહેવાય કરા કહેવાય. બેર એટલે કે બોર. હવે આપણે કેટલાક મુહાવરા જોઈએ. ચૂચલા ઉઠના, ક્રોધિત હોના. सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना.
હવે આપણે અહીંયા અભ્યાસ જોઈએ. प्रश्न नंबर 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलो જોઈએ. तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? उत्तर. मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट और झोपड़ी के जैसे घर है. बीजो सवाल. तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो उत्तर. मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है. त्रीजो सवाल. छप्पर किन किन चीज़ों से बना है? उत्तर. छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियाँ से बनता है. चौथो सवाल. बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? उत्तर. बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન. ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? उत्तर. ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं. छठो सवाल. ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत और फसल को नुकसान होता है. सातवां. कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? उत्तर. मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है. आठवां सवाल. जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं? उत्तर. जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी रहते हैं. नौमूं. बुढ़िया मन ही मन क्या जूझ रही थी? उत्तर. चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है. 10वां. बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ. यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा. यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया. प्रश्न 2. जंगल और में क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए. जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे. હવે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય નહીં જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलो છે. बुढ़िया कहाँ रहती थी? उत्तर. बुढ़िया जंगल में रहती थी. बीजो सवाल. बरसात में बुढ़िया घर में क्या पड़ने लगा? उत्तर. बरसात के बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा. तीजो सवाल. ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? उत्तर. ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया. चौथो सवाल. पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? उत्तर. पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप. छठो. बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? उत्तर. बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था. ત્યાર પછીનો. बुढ़िया का बात सुनकर बाघ ने क्या किया? उत्तर. बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने सिर पर पैर रखकर भाग गया. निम्नलिखित में से प्रत्येक बारे में 5-5 वाक्य लिखिए. मोर पक्षियों में सबसे सुंदर होता है. इससे माथे पर कलगी होती है. इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं. इसकी आवाज़ मधुर होती है. वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है. बादल देखकर मोर नाचने लगता है. मोर पेड़ पर रहता है और हमेशा राष्ट्रीय पक्षी है.
बाघ 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 एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तीसरा है तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई नोकेदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। प्रश्न 3 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्य में कीजिए। અહીં આપણને प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्य में लिखिए। અહીં આપણને અહીંયા મેળાનું ચિત્ર આપેલું છે, એના પરથી 10 વાક્ય બનાવવાના છે। જોઈએ આપણે। यह मेला का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकान लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान, बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी की मज़ा उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो चित्र आपेला छे बाळ मित्रों, આપણે એક વાર્તા અથવા કહાની બનાવવાની છે। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे को आभार माना। कभी छोटे प्राणी को हमारी बहुत मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर नीचे दे उदार के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण જોઈશું। बिल्ली बिल्लिया। मेरे घर में एक बिल्ली है। तो वाक्य बनावશું। मेरे घर में एक बिल्ली है। बीजू छे मक्खी अने मक्खिया। वाक्य आ बने, मक्खी रोग का घर है। मक्खिया गंदगी में रहती है। ત્યાર પછી लड़की अने लड़किया। तो જોઈએ लिया मोहन चाचा की लड़की है। बीजू छे रहीम चाचा के 3 लड़कियां है। रोटी अने रोटिया। तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। त्यार पछी तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। पछी छे चूड़ी चूड़िया। अरुण एक ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा ही 2 चूड़ियाँ पहनती है। मित्रों ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आपनो सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळशुं।